So everyone, good morning and welcome in my class. So today we are going to be learn about the mechanism of addition of HBr on ethylene molecule. So there is a two molecules there, HBr, and second one is the ethylene molecule. And so this ethylene molecule is a non-polar molecule and HBr is a polar molecule. We know that why it is a polar, because of two different poles in this molecule. One is H is the positive center in this HBr molecule and Br is the negative center. And this ethylene is a non-polar molecule because both carbons are same. They are the sp2 hybridized and they're having a equal electronegativity. So that's why this alkene molecule is non-polar molecule. But there is a pi bond is there. This is the pi bond in between to this carbon. So this pi bond is laterally overlapping. And that's why this is the weak bond. This bond is easily break down. Okay, so it make available electron for the electrophilic species. And we have this molecule, HBr molecule. It's having a two pole. One is del positive. There is a positive center as well as there is a del negative center in same molecule. So this is the dipole molecule. It's polar molecule. Okay, and now we are going to add this polar molecule into the non-polar molecule. So this is the HBr addition to the ethylene molecule. And we are discussing here mechanism for this reaction. So this ethylene molecule, the weakly bonded electron gives to this proton. There is a H in the blue color is there. So this is the positive charge center. So this pi electron give to this center through this curve arrow. You can see here, curve arrow indicate the displacement of electron from this CC double bond to the H positive from the HBr molecule. Okay, so first step is there. But in first step में क्या होता है यहाँ पे कि जो H पॉजिटिव होता है HBr का, ये इसका पहले आयोनाइजेशन हो जाता है क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं. और HBr में से जो H होता है H पॉजिटिव, ये कोई एक कार्बन पे, ये दोनों में से कोई एक कार्बन जो होता है उस पे ये जाके ऐड होता है क्योंकि दोनों भी कार्बन दे आर इक्वली बिकॉज दे हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. सो दैट्स व्हाई hydrogen goes to any one carbon from these two and it form the new bond in between to carbon and hydrogen. Okay, so we can see this is the blue color, hydrogen is there, so it formed the bond with this carbon. So CH bond is formed, but simultaneously what happened, there is a del positive charge create on this second carbon. Okay, तो क्या होगा, ये जो second carbon होगा तो यहाँ पे हमें positive charge ऐसे बनते हुए दिखाई देता है. तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि देयर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल सिंपली. ओके, सो देयर इज अ सेकंड काउंटरेंट पार्ट ऑफ द HBr molecule is the del negative. So there is a Br negative is there. Okay, and this Br negative act as a nucleophile and it attack on this positive center and form the bond. Okay, so we can see in the second step what happened. This Br goes to be formed bond with this carbon and from this new bond in this molecule. This is the HBr molecule. And finally, we can say this alkene molecule is converted into the bromoethane molecule. Okay, so in this reaction, what happened? There is the addition of HBr molecule to ethylene molecule. Okay, HBr का addition हुआ ethylene molecule में, तो इसे हम कहेंगे addition of HBr into the ethylene molecule. Okay, तो ये जो है ये मैकेनिज्म इस तरह से उसकी फॉलो होती है. तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए. द नेक्स्ट, देयर इज द एनर्जी डायग्राम. ओके, डिस्क्राइब द रिएक्शन एनर्जी डायग्राम एंड ट्रांजिशन स्टेट. अब ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें एडिशन जो हो रहा है तो इसमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ रही है ना, एक इंटरमीडिएट बन रहा है. और जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होते पहले, है कि नहीं, क्योंकि इसकी एक नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन होती है, उस कंडीशन पे ये न्यूट्रली अवेलेबल होते हैं. बट जब इसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, इट पास द सम बैरियर एनर्जी. ओके, कुछ एनर्जी जो होती है, कुछ एनर्जी की लिमिट तक वो जो मॉलिक्यूल है वो चला जाता है और उसके बाद में वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग शुरू हो जाता है कि नहीं. तो दिस बैरियर ऑफ दिस एनर्जी फॉर द एक्टिवेट this reactant molecule and it goes to the higher energy level. After all, it convert into the product. Okay, so this particular energy level, this required minimum amount of energy to activate this reactant molecule is known as the activation energy,
and due to this activation energy it goes to this energy level. This is called as a transition state. ठीक है कि नहीं? अब कोई भी मॉलिक्यूल में जब हम रिएक्शन करने को जाएंगे तो वहां पे जो मॉलिक्यूल है उसमें ब्रेक डाउन होगा, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, बट ये बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग जो कंडीशन होती है ट्रांजिशन स्टेट के जाने के बाद में वहां पे हमें वो देखने को मिलती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट इन द रिएक्शन स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, है कि नहीं? अब ट्रांजिशन स्टेट के वहां पे पहुंचने के बाद में उसमें क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग हो जाता है। तो हमें उसमें जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में जैसे कि कार्बोकैटायन बन रहा है ये इस एडिशन में HBr का, तो ये जो एडिशन जब हम करेंगे तो HBr का एडिशन करते टाइम जो इंटरमीडिएट बनेगा तो इंटरमीडिएट फॉर्म आफ्टर द ट्रांजिशन स्टेट। ओके, सो दिस इज द टू स्टेप मैकेनिज्म. This is the two-step mechanism. HBr, addition of HBr is a two-step, because in a first step there is a formation of positive charge, that is carbocation, and in a second step there is the HBr is add on this positive charge, so it gives this type of product, is a bromoethane molecule. ओके, तो इस तरह से रिएक्शन होती है। और अगर इसकी एनर्जी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है इसकी यहाँ पे ये यहाँ की एनर्जी होगी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट क्यों होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी गेन कर लेगा, है ना, ड्यू टू द गेनिंग ऑफ सम एनर्जी इट एक्टिवेटेड एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो है डेल जी पॉजिटिव हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो ये गया ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे, है कि नहीं। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें से ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ये हाइड्रोजन की तरफ, मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसका ब्रेकिंग हो जाता है और नया जो HC यानी कि CH बॉन्ड जो है नया यहाँ पे बन जाता है। तो हमें इस तरह का एक स्पीशीज, इस तरह की स्पीशीज हमें वहां बनती हुई दिखाई देती है। ये कौन सी स्पीशीज है, दिस इज द कार्बोकैटायन। ओके, सो दिस कार्बोकैटायन इज फॉर्म हियर। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिर यहां से ये इंटरमीडिएट बनने के बाद ये फिर से यहाँ पे HBr की एडिशन हो जाएगी और यहाँ पे हमें इस तरह से मॉलिक्यूल जो है नया बनते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा ये होता है ब्रोमो इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट होती है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इन बिटवीन टू दिस पॉजिटिव चार्ज जो है ये कार्बन पे, और यहाँ पे जो ब्रोमीन निगेटिव है यहाँ पे एक नया बॉन्ड हमें बनते हुए दिखाई देता है। और फाइनली ये जो स्टेप है ये छोटी सी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, इसका मतलब होता है कि बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएंगी यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमें इंटरमीडिएट बनते हुए दिखाई देता है। सो दिस इंटरमीडिएट फॉर्म इन बिटवीन टू दिस ट्रांजिशन स्टेट, okay, and after the forming this carbocation or any intermediate, this intermediate is highly unstable. Charged species are highly unstable because it form for very small time, है ना, बहुत कम टाइम के लिए वो वहां पे बनते हैं। तो इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, है कि नहीं। और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इजीली स्टेबल स्टेट में कैसे वहां पे उसको कन्वर्ट किया जाए इसके बारे में वो सोचते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट बन गया और इंटरमीडिएट बनने के बाद जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, क्योंकि इंटरमीडिएट तो हाईली अनस्टेबल है। तो हाईली अनस्टेबल स्टेट में ज्यादा वहां पे उसको इट नॉट स्पेंड देयर मोर टाइम इन दिस हाईली अनस्टेबल स्टेट, सो दैट्स व्हाई इट इजीली रिएक्ट विद द bromine negative. Okay, so bromide is easily react with this positive charge and convert into this new CBr bond having molecule is there, that is the bromoethane. Okay, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है और एनर्जी चेंजिंग जो होता है इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और एक जो कंडीशन होती है इसमें कि ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है पहली, है कि नहीं, अब ये बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है कि नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन स्लो होती है। दिस स्टेप इज स्लो, ये जो पहली स्टेप हमें यहाँ पे दिख रही है दिस इज अ स्लो स्टेप, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी उसको लग रही है इट बिकम टू बी द मोर एनर्जी, सो दैट्स व्हाई दिस पाथ इज बिकम टू बी स्लो फ्रॉम रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो ये जो स्लोली कन्वर्जन हो रहा है, तो इन दिस स्टेप यू कैन फाइंड द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। सिंपली दिस स्टेप इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लेकिन यहाँ पे हम उसको रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। और रेट डिटरमाइन जो होता है इस रिएक्शन में एक ही रिएक्शन पे हमें बनते हुए दिखाई देता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे जो एनर्जी डायग्राम इस तरह से एनर्जी चेंजिंग होता है। देन फर्स्ट स्टेप इन एडिशन, अभी ये एक छोटा फ्रैगमेंट लेके उसको और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको थोड़ा सेपरेट किया। तो ये जो पहली स्टेप होती है जहाँ पे H का एडिशन होता है, तो ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं। यहाँ की जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं। अब ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाते हैं ये H की तरफ, मतलब ये अट्रैक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है नहीं। क्योंकि ये जो है ये सेंटर जो हमें पिंक कलर में दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला सेंटर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसर है कि नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बट यहाँ पे HBr में देखे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं हमें, है कि नहीं, इस साइड में, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो सेंटर है ये है निगेटिव पार्ट। अच्छा, तो ये जो पार्ट है ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ये, और इसका जो है यहाँ पे अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला अट्रैक्शन, ठीक है। और इस वजह से अब ये जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये वाले कार्बन के ऊपर नया CH बॉन्ड बनते हुए हमें दिखाई देगा। और जो फिर ये CH बॉन्ड बनने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज जो ये वाली ऑर्बिटल तो पूरी वैकेंट हो जाएगी, ये वाली, है कि नहीं, ये पूरी वैकेंट हो जाएगी। तो वैकेंट पे एक स्पेस अवेलेबल हो जाएगा ये Br नेगेटिव के लिए। तो ये Br जो है, तो ये Br इस साइड में चला जाएगा, है कि नहीं। तो हमें इस तरह से वहां पे एडिशन होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, डिस्क्राइब ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। तो अभी तो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बारे में, बट फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरमीडिएट जो है ये जो बनता है ये यहाँ पर बनता है। देख, यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, यू कैन सी वेरी इजीली, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, एंड इन बिटवीन टू दिस transition state you see here for a very small time there is a generation of intermediate। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है सिर्फ यही कंडीशन, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये इंटरमीडिएट बहुत कम टाइम के लिए बनता है क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से वो जो है ट्राई टू इजिली कन्वर्ट इनटू द मोर स्टेबल कंडीशन। ओके, तो स्टेबल कंडीशन कैसी होगी, if it convert into the product and the product having a lower energy than the reactant। ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ये प्रोडक्ट जो है इसकी एनर्जी जो है ये एज कंपेयर टू रिएक्टेंट कम है। मतलब ये जो डेल जी हमें दिखाई दे रहा है, दिस बिकम टू बी द निगेटिव, दिस बिकम टू बी निगेटिव, तब जाके ये प्रोडक्ट हमें दिखाई देता है। तो ये जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक नहीं। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनेगा, ये इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है, और ये जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली रिएक्टेंट। ओके, तो ये जो स्टेबल प्रोडक्ट जो है इसको अचीव करने के लिए ये जो इंटरमीडिएट है ये ट्राई करता है यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो ये इजीली जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ये प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन होती है, और हमेशा याद रखना इंटरमीडिएट फॉर्म इन बिटवीन टू ट्रांजिशन स्टेट, इट इज हाईली अनस्टेबल और इट फॉर्म फॉर द वेरी स्मॉल टाइम। ओके, एंड इट इज सॉर्टेड इनटू दी, मतलब इसको अगर कैटेगराइज करें तो हम 3 टाइप में अब हमारे सिलेबस में अभी है, जो कि पॉजिटिव है, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, और जो होता है एक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस स्टेप हैज इट्स ओन फ्री एनर्जी फॉर एक्टिवेशन। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे, ये पहली ट्रांजिशन स्टेट है, उसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी ये वाली। ये जो छोटी सेकेंड स्टेप दिख रही है इसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और ये जो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ये बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ही हम इसका रेट जो है वो डिटरमाइन कर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे हम RDS कहते हैं। ओके, देन कंप्लीट डायग्राम फॉर द रिएक्शन शोज द फ्री एनर्जी चेंज एसोसिएट विद एन इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज हम इंटरमीडिएट के एसोसिएट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। Then now we are going to start our chapter is electronic displacement. This is all about the fundamental of chemistry. This is not or all fundamental of chemistry, but this some part of the fundamental that help to understand or study this chapter, electronic displacement. Okay, so everyone you should study this fundamental what I taught you, or also you have to refer the different reference book like Morrison and Boyd, like Warren, okay, Peter Skype, and our textbook also.
Okay, you read this carefully and try to apply this all fundamental to understanding and studying this remaining chapters from your syllabus. Okay, so welcome now. This is electronic displacement. So electronic displacement, very simply, electronic displacement is very much important in the chemistry because we know that everywhere there is a lots of reaction is continuously going on, and this all reaction only because of the electronic displacement. Okay, no any electron in steady at one position in their orbit, in their atom, in the molecule. Okay, they are always in motion. Okay, इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमता ही रहता है कि नहीं? और ये क्या क्यों घूमता रहता है? क्योंकि ये स्टेबिलिटी के लिए कंटिन्यूसली घूमता रहता है इधर उधर, है कि नहीं? कभी एक एटम पे रहता है तो कभी वो एक एटम दूसरे एटम को दे देता है और वहां पे बॉन्ड फॉर्म कर देता है, फिर मॉलिक्यूल बन जाता है कि नहीं? पर मॉलिक्यूल में जाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहता, वो भी घूमता रहता है कि नहीं? और ये घूमता रहता है उसी टाइम पे ही वहां पे जो न्यूक्लियस होता है उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है, ठीक है नहीं? तो ये सारी चीजें होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली मूविंग रखती है। अब ये इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं? तो अगर हमको किसी रिएक्शन को, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस इन केमिस्ट्री, so it's very much important to understand the electronic displacement. In previous slide we are studied about the different curve they are used in the रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हमने कर्व को देखा है कि कर्व किस तरह से यूटिलाइज होते हैं रिएक्शन में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो कि कुछ इफेक्ट होते हैं जिसे जिसे समझ के हम जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है और वो किस तरह की रिएक्शन शो करेगा, किस तरह का वो प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये सारी चीजें डिपेंड होती है उसमें, है ना? तो इस स्लैब इस चैप्टर में वी आर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बी लर्न अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, also this is the mesomeric effect. Okay, this is the literature difference, resonance effect, and then hyperconjugation. So we are going to discuss in detail about this four effect, because this four effect is very much important to understand the structure, reactivity, and behavior of the molecule, and that is very much important if you are going to study the reactions. Okay, किसी भी molecule को किस तरह की reaction show करेगा, उसकी reactivity क्या होगी, उसमें रिएक्टिंग सेंटर्स क्या होंगे, है ना? और ये इलेक्ट्रोफिलिक, जिस तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, ये किस तरह से उसमें ये जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, तो इसके बारे में भी इफेक्ट का हमें वहां पे हेल्प होती है। और जो कुछ मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी के क्या है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट को समझते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोकैटायन अगर लेते हैं हम, कार्बोकैटायन तो डिफरेंट टाइप के कार्बोकैटायन होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। तो इस अलग अलग टाइप के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी अलग अलग होती है कि नहीं? तो इस स्टेबिलिटी को समझने के लिए ये सारे इफेक्ट हमें उसमें हेल्पफुल होते हैं कि किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है या किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी है, ये समझने के लिए दिस इफेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दैट कंसेप्ट। सो this very simple concept is electronic displacement, very fundamental, but it's very applicable, and if you understand this, so definitely you will be master in chemistry, and it is very easy for you to study the chemistry if you understand this all fundamental and this effect. And if you understand this all, and if you know how to apply it, how to correlate this effect with the different properties and different concept related to the molecule, so definitely it's very beneficial for everyone. So transfer of electron from more electronegative atom to less electronegative atom. So as I taught you in some previous lecture, you know that electron move from the higher electron density region to lower electron density region. That simply it is a electronegative atom is a transfer of electron from more electronegative atom to less electronegative atom, more electronegative atom to less, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो टाइप के एटम्स हम देखते हैं, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करता है? पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला, है कि नहीं?
और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच के लेने वाला, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव डोंट द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसिस और एक्सेप्टिंग स्पेसिस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता है, जैसे कि हमने कुछ लेक्चर में पहले कुछ लेक्चर में कहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन to the lower electron density region, means always this electron move from nucleophilic region to electrophilic region. Okay, it always move from negative charge region to positive charge region. Okay, in this way. Then transfer of electron nucleophile to electrophile. Then delocalization of electron occur through covalent bond and double bond. Let's see. अब ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसमें, तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हवा में नहीं होती है ना, एयर में नहीं होता है. So this movement of electron or displacement of electron in the molecule is occur through the double bond and single bond. It's simply called as a sigma covalent bond and pi bond. So you can see there are some number of pi bond in same molecule. They arrange alternate single and double bond. So this is the conjugation position, है ना. Alternate single and double bond. Single bond है, double bond है, परत double bond है, परत single bond है. म्हणजे double bond, single bond, double bond. असी condition, this type of situation in the molecule known as the conjugation. Okay, and in this conjugation condition, the electron is displaced through the pi bond. Okay, and this displacement is very much important for their stability. For the stability, you can see there is a displacement of electron. So simply is known as a delocalization. ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब उसकी जो लोकेशन है ना, डी लोकलाइजेशन, यानी कि जो लोकेशन है उसकी लोकेशन इट विल बी चेंज. सो देयर इज अ डी फॉर द चेंज, एंड लोकलाइजेशन मींस देयर इज अ लोकेशन. सो लोकेशन ऑफ द pi bond, location of the electron, you can see in the molecule, location of electron, it will be changed. Okay, and it will be changed through the sigma covalent bond or pi covalent bond, pi bond also. Okay, that will be understand in some next slides also. Then non-bonded electron also move through the double. This is very much important. We know that non-bonded electron means it's simply the lone pair of electron, specifically heteroatom like nitrogen, oxygen, sulfur, halogens. They're having a lone pair of electron, and specifically the electrons of oxygen and nitrogen. Okay, you will see that these electrons are easily donate and act as a base according to the Lewis concept. Okay, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट होती है उसकी डबल बॉन्ड के साथ में. तो इस तरह का जो भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी हम आगे स्टडी करेंगे. तो ये जो सारे डिस्प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है, डबल बॉन्ड के थ्रू होती है. न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जो है पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज होता है, वैकेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, और ये कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल को नहीं देती है कि नहीं. तो इलेक्ट्रोफाइल नेवर गिव इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियोफाइल. ओके, सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, यू हैव टू ड्रॉ द एरो फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल. ओके, then this four effect we are going to be study one by one in next lecture. There is a first effect is the inductive effect. It's very much important to understand the inductive effect, because when we are going to be classified the molecule in polar and non-polar, so that time this effect is very much helpful. Inductive effect. तो क्या होता है inductive effect? As you see in the picture, हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें जो है ये आप लोगों को पता होगा रस्सी खेत का जो गेम होता है ना. आप लोगों को सबको पता है कि नहीं ये गेम? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर. यस सर. ओके, क्या दिख रहा है आप लोगों को स्लाइड में? Anybody can respond what you are seeing in this slide? रस्सी खेत. हाँ, तो क्या हो रहा है उसमें? अरे बोलिए क्या हो रहा है इस गेम में, क्या हो रहा है वहां पे?
अच्छा ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ रहा है क्या? अरे हाँ नहीं, यस सर। अच्छा समझ रहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट। सो एज वी सीइंग इन दिस पिक्चर, देयर आर थ्री बॉयज at one side and there is one boy on this side, okay, this one and this three. So this three in one team and this is a single man team, okay. So you can see this is the game. We know very well. So what is the rule of this game? But basically we have to be understand the inductive effect with the help of this. Okay. So let's see. यहाँ पे जो ये तीन कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको हम नाम दे देंगे कार्बन 1, कार्बन 2, और ये जो है कार्बन 3, इसको 3 नंबर का दे देंगे, है ना, क्योंकि 3 नंबर पे खड़ा है, लेकिन इसके नंबर अलग अलग है। और इस साइड में एक ही है जो कि इसका नाम, ये जो है इसका नाम है हेलोजन, हेलोजन। okay, so then let's see, this halogen is very powerful as compared to this 3 carbon, okay. As we see, this is very healthy, very strong, and it's only one person on this side halogen, it pulled to this 3-1, okay. तो ये जो है हेलोजन जो है यहाँ पे जो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्या कर रहा है, इस रस्सी को खुद की इधर खींच ले रहा है, मतलब ही बिकम टू बी विन दिस गेम, ओके। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे जो ये रस्सी होनी चाहिए, दिस इज द सेंटर, ओके, दिस इज द सेंटर, बट ड्यू टू दिस पावर ऑफ हैलोजन, दिस सेंटर इट मूव टुवर्ड दिस हैलोजन साइड, ये जो है इस साइड में ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें भी इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट को भी समझना है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेट्स सी, यहाँ पे देयर इज अ टू एटम ए एंड बी, देयर इज एटम ए एंड बी, okay, and these are two different type of atom, okay. So this is the heterodiatomic molecule A and B, okay. So A is like this side is A, this side is A, and this side is a B, okay. And let's see and understand how can we understand to the inductive effect. So let's see, the B is a more electronegative as compared to the A, है ना। बी जो है, ये बी जो है ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से जनरली क्या होता है, इफ देयर इज द सेम टाइप ऑफ एटम ए एंड ए, if these are the A and A, if there is the same type of atom, that is called as a homodiatomic molecule. So in a homodiatomic molecule, you can see at the center there is a electron. जो homodiatomic molecule जो होते हैं, उस homodiatomic molecule में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंटर में होते हैं, बट यहाँ पे जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं, ये सेंटर में नहीं रहते, ठीक है नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे ए और इस ए की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, but if you see this another molecule, this is the A and B, so electronegativity of A is less as compared to B, है कि नहीं। अब B जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, AB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड द B, है कि नहीं, ये B के न्यूक्लियाई के करीब वहां पे चले जाते हैं इस तरह से। और A जो है, ये A का न्यूक्लियस जो है ये थोड़ा दूर रहता है एज कंपेयर टू B, है कि नहीं। तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन जब हम देंगे तो वहां पे हमें कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन वहां पे शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू, इलेक्ट्रॉन जो शिफ्टिंग होती है टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है ये ए बी के साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, है कि नहीं, बी के साइड में, मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन इस बी के करीब हमें दिखते हैं। तो हम कहेंगे कि जो बी है, ये बी वाला सेंटर जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बी के सेंटर के, मतलब उसके न्यूक्लियाई के करीब रहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है
तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा बॉन्ड है और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट शिफ्ट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दिस इज द परमानेंट इफेक्ट, ठीक है नहीं? परमानेंट इफेक्ट होता है। अब परमानेंट इफेक्ट क्यों होता है? अब दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट। अब टेम्पररी यानी कि कुछ टाइम के लिए वो देखने को मिलता है हमें किसी मॉलिक्यूल में, और कुछ इफेक्ट जो होता है जो कि परमानेंट के लिए होता है, मतलब जब तक मॉलिक्यूल है तब तक ये इफेक्ट उसमें हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज द परमानेंट इफेक्ट। ओके, अब परमानेंट इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, ये मॉलिक्यूल जब बना है, ठीक है, तो इसकी लाइफ जो जब से ये बना तब से इसकी लाइफ चालू हो गई, है ना? और जब ये भी बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब ये मॉलिक्यूल फिनिश हो जाएगा, है कि नहीं? ये है, तो ये इसका टाइम बैंड है। तो ये जब तक ये मॉलिक्यूल वहां पे रहेंगे, ए बी बॉन्डेड रहेंगे, तो वहां पे ये जो इफेक्ट है ये आपको दिखाई देता है कि नहीं? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तो परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल है तब तक ये इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, और टेम्पररी इफेक्ट जो होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे कि टेम्पररी किस तरह से होता है, कि जब तक कोई वहां पे एक आधी स्पेसीज वहां पे आती है पॉजिटिव और निगेटिव, तभी तक उसमें हमें जो है पोलराइजेशन उस मॉलिक्यूल में दिखाई देता है। ओके, और जैसे ही वो जो रिएजेंट है वो चला जाता है तो पोलैरिटी खत्म हो जाती है। ओके, जैसे कि एक वो पूरा डिटेलली हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट नाउ वी हैव टू बी अंडरस्टैंड हियर इंडक्टिव इफेक्ट is a sigma covalent bonded electron shifting toward the more electronegative atom. This is a permanent effect. Okay, these two things you have to be keep in your mind. And third one is there, this is the two type of the inductive effect, positive inductive effect and negative inductive effect. Okay, दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें ये जो कार्बन है, तो ये जो कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन को इस बी के साइड में, इस हेलोजन के साइड में यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट तो शो किया, बट विच टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? देयर इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हम प्लस आई इफेक्ट को वहां से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, है कि नहीं? और यहाँ पे बी जो है इट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये जो है नो हो, बट जस्ट एक मिनट बस। सो दिस बी, so B is a more electronegative atom and it pull the electron towards self, है ना, itself। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बी की तरफ जा रहे हैं, तो बी ने भी इंडक्टिव इफेक्ट शो किया, बट ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, दिस इज अ माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट को समझ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो बचा हुआ है वो देख लेंगे। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कम विद इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू बी स्टॉप दिस लेक्चर हियर। ओके, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? No, sir. ओके, थैंक यू।